Hello everyone, my name is Simran and I am going to teach you science. So students, in the last class we have already discussed the part 2 of this particular chapter, that is the living organism, the characteristics and habitats. Firstly students, in the last class we have completely and thoroughly discussed about the habitats like terrestrial habitats, aquatic habitats. Today we are going to study about the characteristics of the living organism. When I say the characteristics students, it means that the properties that the living organism are having that make them different from the non-living beings. ठीक है, मतलब कि living beings के अंदर जो properties हैं, जो characteristics पाई जा रही हैं, वही उनको किसी non-living being से different बनाती हैं, उनसे अलग बनाती हैं. Alright students, have a look. Characteristics of organism. Living things have some common characteristics that make them very different from the non-living. Alright students, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक चेयर की, एक टेबल की, अगर हम बात करें एक स्टूल की, तो these all things are very much different from a human being, from a dog, from a cat, right students? So this is why the characteristics of organism make them very different from the non-living things. Alright students, have a look at this brief poem. So the table to the chair, you can hardly be aware how I suffer from the heat and from chilblains on my feet. If we took a little walk, we might have a little talk. Okay, pray let's take the air. Set the table to the chair, set the chair to the table. Now you know we are not able. Okay, how foolishly you talk when you know we can't walk. Set the table with a sigh. It can do no harm to try. I have so many legs as you. Why can't we walk on to? Basically, this particular rhyme in the poem is all about the inability of the table and the chair to walk. ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि हम क्यों नहीं चल पा रहे हैं, क्या है प्रॉब्लम, मेरा दुख तुम कैसे समझोगी. फिर वो लास्ट में चेयर बोल रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है ट्राई करने में. हम ट्राई करते हैं, तुम्हारे पास भी लेग्स हैं, मेरे पास भी लेग्स हैं, ट्राई करते हैं. सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट a humorous thing that why the non-living things can't walk. Alright students, so firstly we are going to discuss the properties and the characteristics of the living organism. Students, firstly just have this particular thing in your mind that do all the living organisms need food? Okay, obviously yes, all the living organisms and all the living organisms need food in a very much accurate and proper way. How students? We know that plants, animals, human beings, they all need a kind of food, right? In these insects, birds, alright students, these all fall in the category of animals. Alright students, if I'm talking about the plants, they are preparing their food from the process photosynthesis. We have discussed about the photosynthesis process in our earlier class. In that particular process students, plants they make their own food in the presence of sunlight, in the presence of the pigment chlorophyll. Alright students, and in that particular process they make glucose and oxygen and water. Alright students, so basically plants make their own food by the process of photosynthesis. ठीक है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी प्रोसेस की हेल्प से? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अबाउट एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग स्टूडेंट्स, ये दोनों अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, दे डिपेंड ऑन सम अनदर ऑर्गेनिज्म टू लिव, ओके, एंड टू हैव देयर फूड. सो एनिमल्स डिपेंड अपॉन द प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. ये वही है कि या तो वो किसी प्लांट को खाएंगे या फिर किसी और एनिमल को खाएंगे ताकि वो सरवाइव कर सके, ताकि वो अपने फूड का इनटेक कर सके. राइट स्टूडेंट्स, सो फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो. ऑब्वियसली food is something that is giving us energy, that is providing us energy that is helping us to do work. Okay, the capability of doing the work is all because of the energy, right students? So food is very much responsible for the energy, and energy is the factor through which we are doing our work. So to live, it is very important to have the food. Alright students, तो जितने भी living organisms होते हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में फूड का इंटेक करते हैं. Alright students, जैसे organism also need energy for their life processes that go on inside them. For example students, सबसे important चीज़ जो होती है वो होती है respiration. Respiration एक ऐसा process होता है जिसमें जितने भी species होते हैं
वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ठीक है, जिससे उनको एनर्जी भी मिलती है, उनकी सांसें चलती हैं, जिससे वो सर्वाइव कर पाते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इन सभी प्रोसेसेस के लिए उनको फूड की ज़रूरत होती है, उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ? दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना इस पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इस वर्ल्ड में, दे ऑल आर शोइंग सम सॉर्ट ऑफ ग्रोथ. For example, if we are talking about a sapling, we have some sapling at our home. We are just watering that particular sapling on the daily basis in the presence of sunlight, and after a while you'll be seeing that the sapling has grown up to a beautiful plant, right students? So it is showing the growth of a plant. In this picture students, you can clearly see a child, a newborn child growing up to infant, then a kid, then a like very playing kid, playful kid you can say, then a teenage boy, then an adult, right students? अब जो ये trend है, this trend is showing that how a newborn baby has just transformed to an adult through various stages, कि कैसे different stages में आके इन्होंने growth show की. Alright students, so in this picture you can see from the egg it has hatched the chick, right students? And from this particular it became like this, and after it is very mature and it has grown to the fully extent, it is like that. All right students, so every living organism has some sort of growth in the trend, if you are seeing. All right students, a chick hatched from an egg grows into a hen or a cock. Obviously plants also grow, some are very small and young, some are bigger. They may all be in different stages of growth. ये वही है जो हमने अभी देखा कि डिफरेंट टाइप के स्पीशीज अलग अलग टाइप की ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है, और हर एक की ग्रोथ की स्टेज अलग होती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग जो होता है वो ग्रो कर रहा है, ऐसे कोई न्यूबॉर्न में भी अचानक से तो 1 साल में 2 साल में एक एडल्ट नहीं बन जाता ना, तो उसका एक पर्टिकुलर स्पैन है कि कहाँ से वो कितने स्टेज के बाद बिल्कुल इन्फैंट से एक एडल्ट तक बनेगा. सिमिलरली डिफरेंट जो स्पीसीज होते हैं उनका स्पैन अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ डॉग, वो बहुत जल्दी कंपैरेटिवली एडल्ट बन जाते हैं कंपैरेटिवली टू देयर यंग वंस, राइट. तो हर एक का ग्रोथ का स्पैन डिफरेंट होता है, स्टेजेस डिफरेंट होती हैं, रेट डिफरेंट होता है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, लुकिंग एट द नेक्स्ट पार्ट, इट इज डू ऑल organisms respire. This is the third thing. क्या जितने भी organisms होते हैं वर्ल्ड में, क्या वो सब respire करते हैं, respiration process show करते हैं? So students, it is yes. जितने भी organisms होंगे ना वो respiration process को undergo करेंगे ही करेंगे, ठीक है. Whether we are talking about human beings, whether we are talking about animals, whether we are talking about fishes, whether we are talking about plants. For example students, if I am talking about the fishes, they breathe through, they respire through the gills. Alright students, have a look. When we inhale, the air moves from outside to the inside of our body. अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कोई भी एयर है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग, वी ब्रीद इन व्हाट? वी ब्रीद इन ऑक्सीजन, राइट स्टूडेंट्स, एंड वी ब्रीद आउट what we breathe out students? We breathe out carbon dioxide, right? So we breathe in the oxygen and we breathe out carbon dioxide. Oxygen is available in plenty in the environment, and I'm doing like that. So I'm inhaling the oxygen to my body, into my body. All right students, so जब हम अपने एयर को मूव करते हैं बाहर के environment से अंदर की तरफ, हमारी बॉडी के अंदर, तो वो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का. ऑलराइट स्टूडेंट्स, व्हेन वी ब्रीथ आउट, द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड. ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है. रेस्पिरेशन प्रोसेस का एक पार्ट है जिसको हम ब्रीदिंग कहते हैं, सांस लेना जिसको बोलते हैं. उसके अंदर हम हवा जो होती है जिसको हम अंदर लेके जाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं ब्रीद इन. इन का मतलब इनसाइड. And what we breathe out from our body to the air, that is called breathe out air. All right, out means that we are expelling out from our body to the environment, right students? For human beings it is oxygen and carbon dioxide respectively. All right students, so
रेस्पिरेशन का वो प्रोसेस जिसमें ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट का मैकेनिज्म होता है, दैट इज कॉल्ड द ब्रीदिंग. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, some animals may have different mechanism for the exchange of gases which is a part of the respiration process. ये है कि हर एक ऑर्गेनिज्म के पास एक डिफरेंट प्रोसेस होता है जिससे वो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म फॉलो करते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल earthworm breathe through their skin. Fishes we have learned have gills for using the oxygen dissolved in the water. ये है कि जैसे हम ह्यूमन बींग्स अपनी नॉस्ट्रल्स का यूज़ करके ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, उस तरह से जो अर्थवॉर्म होता है वो अपनी स्किन का यूज़ करता है. किसका यूज़ कर रहा है? स्किन का. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग भी जो होता है ना, वो भी अपनी स्किन का यूज़ करता है, ठीक है. और अगर मैं बात कर रही हूँ फिशेस की, तो वो क्या करती हैं? गिल्स का यूज़ करती हैं. वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है ये उसको यूज़ करती है ब्रीद इन करने के लिए. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं डॉल्फिन्स के बारे में, स्क्विड्स के बारे में, तो वो भी अपनी नॉस्ट्रल्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये होल्स का यूज़ कर रहे हैं. सो ये सब डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट मैकेनिज्म शो करते हैं ब्रीदिंग के लिए. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, द गिल्स एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर. ये हमने देखा कि जो गिल्स होती हैं फिशेस का, वो क्या काम करती हैं? वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उसको यूज़ करके अपनी बॉडी के अंदर लेती हैं, ठीक है. और कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो गिल्स का यूज़ करके ब्रीथ कर रहे हैं? ऑक्टोपस होता है, और क्या होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए, ऑक्टोपस, फिशेस, और भी आपको बहुत सारे निकलेंगे, ध्यान देते रहिए, ठीक है. The leaves take in air through tiny pores in them and use in the oxygen, ठीक है. ये क्या है? इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, तो प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं? जो लीव्स होती हैं उनके अंदर जो टाइनी पोर्स होते हैं ना, बिल्कुल बारीक से पोर्स होते हैं, उसके थ्रू वो ब्रीदिंग करती हैं. लीव्स, प्लांट्स, लीव्स, टाइनी पोर्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो प्लांट्स के अंदर का प्रोसेस क्या रहता है कि लीव्स के अंदर जो टाइनी पोर्स होते हैं वो ऑक्सीजन को अपने अंदर इंडल्ज कराते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ व्हाट इज द लास्ट पॉइंट? दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर. ऑलराइट, सभी हम ये करते हैं, हम लोग भी अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट करते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, दिस इज द फोर्थ पॉइंट. डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. स्टिमुलाई क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी इस रूम के अंदर फैन ऑन करना चाहा, उसके लिए मैंने स्विच ऑन किया, बट बाय चांस उस स्विच में मुझे करंट लगा, ठीक है. अब क्या मेरी बॉडी उस करंट को रिस्पॉन्ड करेगी? जो सडन चेंज आता है, सडन शॉक ऑफ द मूवमेंट आता है हमारी बॉडी में, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हर एक की बॉडी, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे ना, उन सब की बॉडी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करती है. येस, दे रिस्पॉन्ड टू इट. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं. ऑलराइट, सो हैव अ लुक. ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच चेंजेस. जो एकदम से चेंजेस हमारी बॉडी को मिलते हैं, लगते हैं, हम सब उन स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं, वो भी इमीडिएटली. अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत ही आग का माहौल है, ठीक है, या फिर कोई आग लगी हुई है, अचानक से मेरा हाथ उस पर पड़ा, तो मैं इमीडिएटली अपने हाथ को पीछे करूँगी ना, बिकॉज इट इज़ अ sort of change, sudden change, so I'll respond to that particular change or stimuli immediately. All right students, so changes in surroundings that makes us respond to them are called stimuli. मतलब हमारी सराउंडिंग्स में जो चेंजेस होते हैं, जो हमें उस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर कर देते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? स्टिमुलाई. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्टिविटी 4. अब ये एक एक्टिविटी है जो स्टिमुलाई को कैसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं वो एक्सप्लेन करेगी, डेमोन्स्ट्रेट करेगी. प्लेस अ पॉटेड प्लांट इन अ रूम अ लिटिल वे फ्रॉम द विंडो, लिटिल अवे फ्रॉम द विंडो थ्रू विच सनलाइट एंटर्स सम टाइम ड्यूरिंग द डे. अब हम क्या कर रहे हैं कि एक पॉटेड प्लांट है, उसको हम कहाँ रखेंगे? एक रूम के अंदर रखेंगे, ठीक है, विंडो से थोड़ा सा दूर, ठीक है, ताकि जो सनलाइट आए वो डे के टाइम थोड़ी सी सनलाइट उसमें पड़ जाए. थोड़ा सा विंडो से अलग रखेंगे, दूर रखेंगे. कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर अ फ्यू डेज. अब उस पर पानी डेली डालना है, ठीक है, डेली बेसिस पे उसको वाटर करना है.
Note the direction in which it bends. It is not growing upright. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर ये विंडो थी, मैंने उस पौधे को इधर रखा, मतलब विंडो के कंपैरेटिवली उसको इस वाली साइड पे रखा ना, तो सनलाइट उसको ऐसे मिल रही थी और उसको सनलाइट ऐसे मिल रही थी। डेली मैं इसको वाटर दे रही हूँ, तो जहाँ पे वो पौधा बिल्कुल स्ट्रेट लगता, अब क्योंकि उसको मैंने थोड़ा सा बेंड करके विंडो से थोड़ा दूर लगाया और सनलाइट जो उसको मिल रही है वो इस तरह से मिल रही है, ठीक है। तो अब वो जो ग्रो करेगा ना, वो इस डायरेक्शन में करेगा, सनलाइट की डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में सनलाइट होगी ना, उस डायरेक्शन में वो बेंड करके ग्रो करेगा। यही हमें बता रखा है, नोट द डायरेक्शन इन विच इट बेंड्स, इट इज नॉट ग्रोइंग अपराइट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ऑल द लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। देखिए, अब अगर ये यहाँ है तो ये सनलाइट की तरफ ग्रो कर रहा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इससे पता लगता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दिस इज द फिफ्थ point, living organisms and excretion. Excretion is the process, students, in which an human being or any living organism expels out the waste, all right, from their body. So the process of getting rid of the waste by organism is known as excretion. Okay, वो process जिसमें एक human being या एक organism अपनी body के अंदर जितने भी waste है उनसे छुटकारा पा लेता है, उसको क्या बोलते हैं? excretion का process कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, Do all organism respond their own kind? ये कौन सा पॉइंट है? फिफ्थ। और अगला हम कौन सा कर रहे हैं? सिक्स्थ पॉइंट। अब ये बोल रहा है कि क्या जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो अपनी ही काइंड को रिप्रोड्यूस करेंगे, मतलब अपनी ही काइंड को आगे बर्थ देंगे। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है टू गिव द बर्थ टू द यंग वंस। ओके, तो ये होता है रिप्रोडक्शन का केस। आपने कभी स्टूडेंट्स कभी ऐसा देखा है कि किसी डॉगी ने किसी कैट को बर्थ दिया हो? नहीं ना। या किसी ह्यूमन बीइंग ने किसी पिग को पैदा किया हो? नो। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू देयर ओन काइंड। दे रिप्रोड्यूस फर्दर जनरेशंस टू द सेम काइंड, टू द सेम टाइप। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हम ह्यूमन बीइंग्स को ही बर्थ देते हैं। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लांट्स, तो उसके सीड्स, उसके सैपलिंग्स, जो भी उसके लीव्स वगैरह से कुछ भी लगेगा तो वो प्लांट ही लगेगा, एनिमल नहीं लगेगा। और एक एनिमल, लाइन हमेशा एक लाइन को ही बर्थ देगा, काऊ को नहीं दे सकता। काऊ हमेशा एक काऊ को ही बर्थ देगी, मगरमच्छ को बर्थ नहीं दे सकती, ठीक है। तो जितने भी रिप्रोडक्शन सिस्टम होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमेशा बर्थ देते हैं सेम काइंड ऑफ स्पीशीज को। ऑलराइट, हैव अ लुक। मैनी बर्ड्स ले देयर एग्स इन द नेस्ट, सम ऑफ द एग्स हिच एंड यंग वंस कम आउट ऑफ देम। यही है कि जितने पक्षी होते हैं वो एग्स देते हैं उनके घोंसलों में, उनके नेस्ट में। कई बार उन एग्स से क्या निकलते हैं? उनके यंग वंस निकलते हैं, ठीक है। एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, ऑब्वियसली वो भी अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स, ऑब्वियसली। हाउ? बिकॉज हम लोग बर्थ देते हैं, ह्यूमन बींग्स देख लीजिए आप, काऊ देख लीजिए, ये लोग अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। कई यंग वंस कैसे निकलते हैं? एग्स के थ्रू निकलते हैं, ठीक है। कई आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स, तो सीड्स के थ्रू वो यंग मतलब बर्थ दे रहे हैं। तो हर एक का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट होता है हर केस के अंदर, ठीक है। सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स, ठीक है। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, plants also reproduce like animals. Plants also differ in their mode of reproduction, right students? कि जो plants होते हैं वो भी reproduce करते हैं seeds की help से। देख लीजिए, कई बार for example if I'm talking about aloe vera, then we cut the leaf of the aloe vera, stem of the aloe vera and just put it in the soil, and after some time you will see that it has grown up. All right students, so the mode of reproduction may be different but it will be the same kind of reproduction. All right, so like animals, plants also differ in the mode of reproduction which I am talking about. Many plants reproduce through seeds. Plants produce their seeds which can germinate and grow into new plants. प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है रिप्रोडक्शन की। कई प्लांट्स फ्रूट्स को अगर डाल दो तो उग जाते हैं, कई लीव्स को डालने पे उगते हैं, कई फ्लावर्स को डालने पे भी उग जाते हैं, कईयों को बिल्कुल अलग तरीके से उगाना पड़ता है, ठीक है। तो दे डिफर इन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो देखिए ये डॉग्स के जो बच्चे हैं ये पपीज़ हैं, कैट्स के भी कैट ही होंगे, ठीक है। अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द काऊ, जैसे काऊ जो है वो भी हमेशा अपने काऊ को ही बर्थ देगी, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए
फॉर एग्जाम्पल अ पार्ट ऑफ पोटैटो विद अ बड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। जैसे एक पोटैटो का बड था, धीरे धीरे कैसे वो एक पूरा पोटैटो का पौधा बन गया। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है कि हाउ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू देयर यंग वंस बाय डिफरेंट मीन्स बट दे रिप्रोड्यूस ऑफ देयर सेम काइंड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जैसे ये एक्टिविटी 5 है, टेक अ कटिंग फ्रॉम अ रोज और अ मेहंदी प्लांट। आप क्या कीजिए, या तो कोई रोज लीजिए या कोई मेहंदी का प्लांट लीजिए, उसकी कटिंग लीजिए। ठीक है, फिक्स इट इन द सॉइल एंड वाटर इट रेगुलरली। अब उसको सॉइल के अंदर गाड़ के उसको डेली बेसिस पे वाटर कीजिए। इट मे नॉट बी ईजी टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम द कटिंग्स, ये ईजी नहीं होता, बट आप लोग ट्राई कीजिए कि ढंग से हो जाए। डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड इफ योर कटिंग डजंट ग्रो। ठीक है, ये है कि कई बार ईजी नहीं होता कटिंग से प्लांट ग्रो करे, बट आप उदास मत होइए, ट्राई कीजिए। ठीक है, टॉक टू द गार्डनर इफ पॉसिबल ऑन द केयर टू बी गिवन टू कटिंग्स टू मेक देम ग्रो इनटू प्लांट्स। ठीक है, अगर आपसे नहीं लग रहा तो आप गार्डनर से बात कीजिए या ऐसे पर्सन से बात कीजिए जिनको नॉलेज है हाउ टू ग्रो द प्लांट्स। ठीक है, वो आपकी हेल्प करेंगे उस प्लांट को उगाने में। ठीक है स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू द रिप्रोडक्शन। ठीक है, ऑब्वियसली इतनी देर से हम यही तो बात कर रहे हैं कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अपनी ही तरह का पौधा उगाते हैं, उतनी ही तरह का रिप्रोडक्शन करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव। अब क्या है, अभी कई बच्चे सोच रहे होंगे प्लांट्स भी तो लिविंग बीइंग्स होते हैं, वो तो मूव नहीं करते हैं वो मूव। ठीक है, उनके मूव करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, बट वो मूव करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे ऑल मूव, दे ऑल शो द मूवमेंट। ऑलराइट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स, उनके पास तो 4 पैर हैं, वो जितने मर्जी तरीके से वॉक करें, भागें, कुछ भी करें। ह्यूमन बींग्स भी वॉक करते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स, वो भी मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, अभी हमने एक एक्टिविटी देखी थी जिसमें सनलाइट अगर दूर थी तो उस प्लांट ने वहीं पर मूवमेंट शो किया। देखते हैं हवा चलती है तो उसके लीव्स मतलब होते हैं ना, हवा के अंदर उसके पत्ते लहरा रहे हैं। ठीक है, फ्रूट्स निकल रहे हैं, तो वो मूवमेंट तो शो कर रहे हैं ना किसी तरीके से। तो प्लांट्स भी मूव करते हैं, ऐसी बात नहीं वो चल नहीं पाते, लेकिन किसी और तरह से वो मूवमेंट शो करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन द सॉइल सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि वो सॉइल के अंदर फर्मली ग्रिप्ड होती है उनका। ठीक है, सॉइल से, तो वो ऐसा एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल पाते, बट दे कैन शो द मूवमेंट। However, various substances like water, minerals and the food synthesized by them move from one part of the plant to the another. ये क्या है कि अगर plants एक जगह से दूसरी जगह पे move नहीं कर रहे, लेकिन पानी जो है and other minerals from the roots are getting transferred to the rest of the body of the plant, right? The food prepared by leaves are transferred to the rest of the body parts of the plant, right? तो ये जितनी भी मूवमेंट है ये भी प्लांट की मूवमेंट में ही आती है, क्योंकि कोई और इंसान तो उसको वहाँ से लेके वहाँ नहीं देना ना, वो तो प्लांट खुद ही कर रहा है ना अपने अंदर की प्रोसेस के अंदर, तो वो मूवमेंट ही है। ठीक है, सो दिस इज कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ प्लांट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये भी मूवमेंट ऑफ प्लांट के अंदर ही आएगा। Alright, देखिए, there is such a variety of living organisms, but all of them show some common characteristics as we have discussed. Alright, कितनी तरह की प्रॉपर्टीज हमने देखी कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो डिफरेंट तरह की हमने प्रॉपर्टीज भी सीखी है, डिफरेंट तरह की हमने बातें बोली हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, मूव करते हैं, खाना चाहिए उनको, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं, सो ऑन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, so yet another common characteristics is that living beings die. कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं होती है ना लाइफ में, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बर्थ ले रहा है वो मरता भी ज़रूर है एक टाइम पे। ठीक है, अलग अलग मोड हो सकता है मरने का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स हैं, मुरझा के मर जाते हैं। ठीक है, एक टाइम के बाद एनिमल्स, ह्यूमन्स, ये सब मरते हैं। कभी कभार नेचुरल डेथ होती है, कई बार एनवायरमेंटल डेथ भी हो जाती है, कई बार कोई एक्सीडेंटल डेथ भी होती है, बट एक रियलिटी ये है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है, दैट दे ऑल डाई। ओके, बिकॉज ऑर्गेनिजम्स डाई, पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओनली इफ दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। ये इसका मतलब, पॉइंट का मतलब ये है कि क्योंकि ऑर्गेनिजम्स मरते हैं, बिकॉज दे डाई,
तो अगर उनके सेम काइंड को बहुत सालों तक इस अर्थ पे रहना है, इस प्लैनेट पे रहना, तो उनको अपने यंग वंस को बर्थ देना पड़ता है. दे हैव टू रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, ताकि उनके टाइप अर्थ के अंदर बहुत सालों तक सर्वाइव कर पाए. ठीक है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकते, वो बहुत सालों तक खुद सर्वाइव नहीं कर सकते, तो जो उनके यंग वंस होते हैं वो सर्वाइव करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, एक मरता है, फिर दूसरा आता है, फिर दूसरा मरता है, फिर तीसरा आता है, ये प्रोसेस चलता ही रहता है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो one single organisms may die without ever reproducing, but the type of organism can exist only if there is reproduction. इसका मतलब ये है कि कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि वो डाई हो सकता है विदाउट एवर रिप्रोड्यूसिंग, वो किसी को रिप्रोड्यूस किए बिना भी मर सकता है. लेकिन यूजुअली क्या होता है कि एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो रिप्रोडक्शन करता है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपके आसपास में देखें, ज़रूरी नहीं है कि कोई तभी मरेगा जब वो अपने यंग वंस को बर्थ दे चुका होगा. कई केसेस में क्या होता है कि इंसान पहले मर जाता है, कोई एनिमल पहले मर जाता है, बट उनका एक टाइप ऑफ स्पीशीज़ जो होता है. ठीक है, अब एक इंसान तो नहीं है ना दुनिया में, बहुत सारे इंसान हैं. तो अगर एक इंसान बिना अपने यंग वंस को बर्थ दिए पहले ही डाई कर रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि इंसान खत्म हो जाएंगे दुनिया से. उसके टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहेंगे ना, वो रिप्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद वो डाई होंगे, फिर वो आगे रिप्रोड्यूस करेंगे. तो इस तरह से उनकी स्पीशीज अर्थ के अंदर बहुत सालों तक सर्वाइव करती है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसी के साथ स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 9, दैट वाज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हैबिटेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स. इस पर्टिकुलरली चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी. द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, ओके, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एक्वेटिक हैबिटेट्स. इसके अंदर हमने बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स देखे. राइट, उन दोनों कंपोनेंट्स में क्या था कि कैसे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स मिलके एक हैबिटेट बनाती हैं. ठीक है, हैबिटेट्स के अंदर भी हमने कितने तरह के हैबिटेट्स देखे. ठीक है, एक्वेटिक देखे. ठीक है, इसके अलावा हमने कौन से हैबिटेट्स देखे, टेरेस्ट्रियल देखे. इनके अंदर फर्दर हमने माउंटेन देखा. ठीक है, और क्या देखा स्टूडेंट्स, ग्रासलैंड्स. और बताइए इसके अलावा क्या देखा था, डेजर्ट्स देखे थे. ठीक है, एक्वेटिक में हमने क्या देखा, पॉन्ड्स, लेक्स, ओशंस, रिवर्स. ठीक है, ये तो हमने बात की किसकी, हैबिटेट की. इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने बात की एडेप्टेशन की. इसके अलावा आज हमने क्या देखी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट्स शो करते हैं, दे ऑल हैव द फूड खाते हैं ना सब. दे ऑल एक्सक्रीट, सारे एक्सक्रीट करते हैं. दे ऑल रेस्पायर, राइट. दे ऑल रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. Apart from that students, और क्या था, that they all give birth to the young ones. They all reproduce. Apart from that they all die. Okay, so there are, and they also show the movements, they move, right. So these were the characteristics of living organisms. Characteristics of living beings. So students, this chapter is very important in aspect of the concept that is concerned. Alright, so today we have completed the chapter's concept. In the next class, students will be discussing the questions and answers of this particular chapter 9. So I really hope that you all will learn and read this particular chapter at your homes. I'll be meeting you in the next class. Till then students, do practice hard. We'll be meeting in your next class. Have a nice day to all of you. Bye bye.